Assalamu alaikum. Today we have to start our next lecture with the lattice specific heat which we were defining in the previous lecture. As we have discussed before that lattice specific heat for different solids and different at same temperature or heat provided is different, and we have discussed about different examples of water and solids. Now we have to continue with the further. For the lattice specific heat, the first contribution arises from the atomic vibrations and may be called as the lattice specific heat. For and the other thing is electronic system, and for this we will define the second contribution. The first contribution arises with the lattice specific heat with the of the vibrations. Now the second thing is the contribution arising from the electronic system and relatively small contributions. लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा होता है, लेकिन इनका इफेक्ट ज़रूर होता है. तो इसका मतलब टोटल जो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड है वो डिपेंड करेगी दो तरह की स्पेसिफिक हीट्स पे. दैट इज इक्वल टू सी सॉलिड इज इक्वल टू सी लैटिस प्लस सी इलेक्ट्रॉनिक, कि आपकी जो टोटल स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड है दैट डिपेंड्स अपॉन द लैटिस स्पेसिफिक हीट एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट. Here we are describing the dependence of heat capacity at constant pressure, constant volume on the temperature. कि अगर जो है CV का अफेक्ट जो है या डिपेंड कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. एक्सपेरिमेंटल कर्व फॉर वेरिएशन स्पेसिफिक हीट विद द टेम्परेचर इज शोन. अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि हाई टेम्परेचर पर जो सॉलिड्स हैं वो क्या कहते हैं 3R पर शो करते हैं. ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ ने कहा था कि ये 3R ही होती है और ये जो है कांस्टेंट रहती है. लेकिन आइंस्टाइन ने कहा ये हाई टेम्परेचर पर 3R होती है, लेकिन जब आप इसको लो टेम्परेचर पर लेकर आते हैं तो ये किस तरह चेंज करती है, जो है क्वांटम मैकेनिकली चेंज करती है और एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर क्या हो जाती है, ये जीरो हो जाती है, यानी बिल्कुल लो टेम्परेचर जीरो के ऊपर. तो ये जो ग्राफ है ये दरमियान में ऊपर आपके पास 3R हाई टेम्परेचर को शो कर रहा है, सब नीचे जीरो को शो कर रहा है, जीरो टेम्परेचर, और दरमियान में क्या लो टेम्परेचर की वेरिएशन है जो कि क्वांटम मैकेनिकली चेंज. अब यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं एट हाई टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल द सॉलिड्स रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ 3R एंड इज कॉल्ड द ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ, जो हमने पीछे पढ़ा था, दैट इज CV इज इक्वल टू 3R. एट जीरो टेम्परेचर or at absolute temperature the specific heat capacity will be CV is equal to 0. At low temperature the specific heat capacity decreases sharply and that is equal to CV directly proportional to T power 3 for insulators and CV directly proportional to that is for metals. यानी कि ये अब इक्वल नहीं है बल्कि वेरी कर रही है एक्सपोनेंशियली. ठीक है, पावर आप इसमें देख रहे हो. सबसे पहले बात वही जो हमने पीछे की थी ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ की. यहाँ पर उसने यही बात की है कि ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ कहता है कि 3R जो वैल्यू है वो सॉलिड्स के लिए हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहती है. तो द ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ अ थर्मोडायनामिक रोल प्रपोज्ड इन 1819 बाय फ्रेंच फिजिस्ट Pierre-Louis Dulong and Alexis Thierry states that classical expression for the molar specific heat capacity of certain chemical elements. Experimentally, the two scientists have found that the heat capacity per weight, that means the mass specific heat capacity for a number of elements, was close to a constant value after it had been multiplied by a number representing the presumed relative atomic weight of the element. That these atomic weights had shortly before been suggested by Dalton. और यही जो थे स्पेसिफिक हीट्स डॉल्टन ने भी प्रेजेंट किए थे. तो उसने कहा कि ये जो ओवरऑल वैल्यू फॉर द सॉलिड्स और एलिमेंट्स के लिए वो क्या रहती है, ओवरऑल कांस्टेंट रहती है. मॉडर्न टर्म्स की बात करते हैं. ड्यूलॉन्ग और पेटिट फाउंड दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ मोल of many solid elements is about 3R, where R is the modern constant called the universal gas constant. Dulong and Pettit were unaware of the relationship with the R, since this constant had not yet been defined from the later kinetic theory of gases. जो ये 3R उस वक्त डिफाइन नहीं हुआ था, जो कि बाद में डिफाइन हुआ था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस थी और ये आपस में रिलेटेड था. द वैल्यू ऑफ 3R इज अबाउट 25 joules per Kelvin, and Dulong and Pettit essentially found that this was the heat capacity of certain solid elements. और उसने उन्होंने फाइंड किया कि 3R जो है that is equal to 25 joules per Kelvin, और certain बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सॉलिड एलिमेंट्स, उनकी हीट कैपेसिटी तकरीबन इतनी है.
per mole of the atom that they contain. की बात करते हैं तो the modern heat theory of the heat capacity of solid states that it is due to the lattice vibration in the solids and was first derived in crude form from this assumption by the Albert Einstein 1907. अब मॉडर्न हीट थ्योरी में उसने कहा कि जो लैटिस वाइब्रेशंस है सॉलिड्स की वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं और इसको assumption किसने किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1907 में द आइंस्टाइन सॉलिड मॉडल thus gave for the first time a reason why the Dulong-Patil law should be stated in terms of classical heat capacity for gases. फिर आइंस्टाइन का जो मॉडल है उसने डिफाइन किया कि क्यों ड्यूलोंग-पेटिट को क्लासिकल हीट ऑफ द कैपेसिटी को सिर्फ डिफाइन करने के लिए एट हाई टेम्परेचर आप जो है वो यूज कर सकते इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. अब यही जो लॉ था ड्यूलोंग-पेटिट का इसका जो मॉडर्न टर्म अब आप अगर डिफाइन करें द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ ड्यूलोंग-पेटिट लॉ इन मॉडर्न टर्म्स इज दैट regardless of the nature of the substance के नेचर को आप ना देखें the specific heat capacity C of a solid element measured in joule per Kelvin per kilogram is equal to 3R over M where R is the gas constant measured in joule per Kelvin per mole and M is the molar mass measured in kilogram per mole. Thus the heat capacity per mole of many elements is 3R पर मोल. अगर आप देखें तो बहुत सारे सॉलिड्स के लिए नेचर को छोड़ दें तो सबके लिए जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 3R रहेगी. The initial form of Dulong-Pettit law was Cm is equal to K, where C is the specific heat, M is the atomic weight accepted in that day, and K is the new constant which we know today is about 3R. In modern terms, the mass M divided by atomic weight, capital M gives the number of moles, capital N, that is M over M is equal to N. Therefore, using uppercase C for the total heat capacity and lowercase c जो कैपिटल सी है वो टोटल हीट कैपेसिटी और जो छोटा सी है वो लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसको डिफाइन करेगा. सी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इनटू कैपिटल एम इज इक्वल टू के. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने रीअरेंज करके तो सी कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम इज इक्वल टू सी ओवर एन दैट इज इक्वल टू के एंड दैट इज इक्वल टू 3R और यू कैन से सी ओवर एन इज इक्वल टू 3R. यहाँ से भी आप देख सकते हैं देयरफॉर द हीट कैपेसिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इज 3R पर मोल ऑफ सब्सटेंस. यहाँ से भी आप वैल्यू देख रहे हो जो है आपका ड्यूलोंग-पेटिट लॉ उसकी कुछ एप्लीकेशन लिमिट्स भी हैं यानी कि अभी जैसे हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक जो हाई टेम्परेचर पे डिस्पाइट इट्स सिंप्लिसिटी ड्यूलोंग-पेटिट लॉ ऑफर्स फेयरली गुड प्रेडिक्शंस फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेनी एलिमेंट्री सॉलिड्स विच relatively simple crystal with relatively simple crystal structures at high temperature के साथ डिस्कस करते हैं. The Dulong-Pettit law fails at room temperatures for light atoms bonded strongly to each other. हल्के हों लेकिन strongly bonded हो उनके लिए भी ये applicable नहीं है, such as in the metallic beryllium and in carbon as diamond. In the very low or the cryogenic temperature यानी low temperature where the quantum mechanical nature of the energy stored of all solid manifest यानी वो आप क्वांटम लेवल पर चले जाते हैं लैटिस लेवल पर चले जाते हैं छोटे लेवल पर चले जाते हैं बिहेवियर पे तो वो क्या कहता है कि उस टाइम जो है ये वैल्यू जो कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि ये चेंज हो जाती है. विद लार्जर एंड लार्जर इफेक्ट द लॉ फेल्स फॉर ऑल सब्सटेंसेस. फिर उस केस पे जब आप क्वांटम लेवल पे जाते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर तो ये जो आपकी बात है कि हाई टेम्परेचर पर वैल्यू कांस्टेंट रहती है सारे सब्सटेंसेस के लिए नेचर को छोड़ के तो वो फिर क्या हो जाती है फेल. अब ये रेफरेंस जो है आपके पास बुक का वही सॉलिड स्टेट फिजिक्स है एम ए वहाब की और इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय चार्ल्स किटल और इसको आप फॉलो कर सकते हैं और उम्मीद है कि लैटिस स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड जो अभी आपने हिस्ट्री और ड्यूलोंग-पेटिट लॉ को देखा है कि क्लासिकल बिहेवियर कैसे वो डिफाइन करता है और कैसे लो टेम्परेचर के ऊपर जो वेरिएशन आती है क्वांटम मैकेनिकली उसको ऑब्जर्व किया है. जो अब आपने मजीद आगे पढ़ना है उससे रिलेटेड ही आपको ड्यूलोंग-पेटिट लॉ को समझना ज़रूरी था जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर डील करता है. और अगर इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन है और समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.